Namaste. I'm Dr. Manisha Anvekar, and I welcome you all on this very special day. Today, we are meeting for a special event called Take a Minute, Save a Life. Today is September 10th, and this day is marked as World Suicides Prevention Day. Some people have specially requested me to conduct this program in Hindi as well as English. So I would like to use both these languages. I am perfectly fine with it, and I hope that you won't mind it as well. So before I begin the program, you always know that I like to bring my symbolic candle, and we recite a small mantra, and after that we will begin the program. Please do write in your comments, and after the talk is over, I would like to answer your questions. So please keep writing. Some comments, I think they get filtered by Facebook, but it doesn't matter. If I cannot see your comments during the program, I would definitely answer them to the best of my ability after the program is over. So let me take my candle. I request you to please close your eyes. And if you know this mantra, then you can recite it with me. If you do not know, it's simply okay. Uh, you can just listen to it. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. The simplest meaning of this mantra is from asat to sat. That means from falsehood to truth, from darkness to light, and from the fear of death to immortality. May there be peace within me, around me, and in the lives of all those who are with me. So, this is a universal peace mantra. And during this time of the pandemic, we are all looking forward for inner and outer peace. With this candle in my palms, I would also like to pray for the departed souls, and especially those who died by suicides. So I'm just praying for them, and I request all of you to please pray for them wherever you are. Live in peace. If you know anybody who might have died by suicide, please pray for them. If you do not know anybody personally, still we watch the news, we read newspapers, and we have so many other sources to know that many people are committing suicides. So please pray for the well being of every departed soul. Thank you. So many people ask me कि मैं ऐसा अजीब सा सब्जेक्ट क्यों चूज करती हूँ.
सुसाइड्स, जो कि एक ड्रेडेड सब्जेक्ट है, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। मैं इस तरह की बात क्यों करती हूँ? इस तरह का सब्जेक्ट मैं क्यों बात करना चाहती हूँ? क्या मुझे कुछ लगता नहीं है इसके बारे में? मेरा एक सिंपल सा रिप्लाई है, लगता है। इसीलिए तो बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि लोग क्यों सुसाइड्स करते हैं। एंड टू टेल यू, this subject is very close to my heart. Why very close to my heart? Because I have lost a few people by suicides. मेरी फैमिली में 2, मेरे 3 फ्रेंड्स और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के घर में लोगों ने सुसाइड किए हैं। ये लोग बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं बहुत सारे सवाल, जिनको आंसर करने वाला कोई नहीं होता। ये बेचारे शायद छूट जाते हैं अपने पेन से, अपनी एगनी से, अपने चैलेंजेस से, लेकिन जो इनके साथ रहने वाले लोग होते हैं, जो इनके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास हमेशा ये क्वेश्चंस रह जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। सुसाइड्स की दुनिया बहुत अलग है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग इनके बारे में बात करते हैं वो सुसाइड कभी कमिट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां लोगों ने ये बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुसाइड करूंगा या करूंगी। उन्होंने हेल्प भी मांगी लोगों से कि इफ यू कुड हेल्प मी विद दिस, लेकिन शायद उनको टाइम रहते वो हेल्प नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी। उन लोगों ने, बेचारों ने, सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों ने अपना पेन अपने अंदर ही रखा, किसी के भी साथ शेयर नहीं किया और सुसाइड कर लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लोग कुछ पाना चाहते हैं और उनको वो मिल नहीं पाता, इसलिए सुसाइड करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने 7 साल तक जिस चीज को पाना चाहा था, जिसमें अपनी जान सब कुछ लगा दी थी, वो चीज मिली और उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक जेंटलमैन थे पहचान में हमारे, वो ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद क्या होता है, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइफ में, लेकिन एक बात उनमें कॉमन होती है, एंड दैट इज दैट दे फील दैट एवरीथिंग इज क्लोज्ड फॉर देम। उनके आगे सिर्फ अंधेरा है, उनकी लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और जब इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट आती है, जब इस तरह की हेल्पलेसनेस आती है, तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि सुसाइड हर चीज का सलूशन है? मुझे नहीं लगता। हम सभी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, कभी लाइफ ऊपर जाती है और कभी नीचे। ये अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, या मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है? हम सभी की लाइफ में ये सब होता रहता है, लेकिन सुसाइड करना सल्यूशन नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, जो शायद आपको ऑलरेडी पता होगी, कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी होता है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमारी सिचुएशंस, हमारे चैलेंजेस, हमारे पेन्स, हमारी एगनीज, हमारे हार्ट ब्रेक्स, हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स, सभी कुछ टेम्पररी हैं। जब प्रॉब्लम टेम्पररी है तो उसका सल्यूशन परमानेंट क्यों होना चाहिए? सोचिए इस बारे में। जब प्रॉब्लम टेम्पररी तो उसका सल्यूशन टेम्पररी।
और फिर एक दिन तो हम सबको मरना ही है ना। जिन्होंने भी जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, दे ऑल विल डाई वन डे, एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसे नहीं। डू नॉट कमिट सुसाइड। आप सोचते होंगे कि इस प्रोग्राम का नाम टेक अ मिनट सेव अ लाइफ ऐसा क्यों रखा है। 1 मिनट में आप ऐसा क्या कर लेंगे जिससे किसी की लाइफ सेव हो जाए। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव हर चीज में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है सब लोगों से। आप उनसे पूछिए जिनको सिर्फ 1 मिनट की देर हुई और उनकी फ्लाइट छूट गई, या सिर्फ 1 मिनट की देर हुई और कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। और लेकिन नेगेटिव ही क्यों, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। अगर मैं इसी मोमेंट पे आपसे कहूं कि 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और ठीक 1 मिनट तक मैं भी चुप होके बैठ जाऊं, तो आप देखिए कि वो जो 1 मिनट होगा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए। हमको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, कितने घंटे लग रहे हैं ये 1 मिनट के लिए। ये जो 60 सेकेंड्स का जो टाइम है, ये जो 1 मिनट का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बहुत सारे डिसीजंस जो स्पर ऑफ द मोमेंट में लिए जाते हैं वो इस ही 1 मिनट में लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस जो हम आगे के लिए टाल सकते हैं वो भी इसी 1 मिनट में लिए जाते हैं। इसलिए टेक अ मिनट एंड सेव अ लाइफ। तो इस 1 मिनट की शुरुआत आप आज से कीजिए। सिर्फ 1 मिनट अपने आप के लिए, अपने मी टाइम के लिए रखिए, और उसमें अपने भीतर चले जाइए, अपने अंदर चले जाइए और देखिए कि आपका इनर एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि सुसाइड्स जब कमिट किए जाते हैं या प्लान किए जाते हैं तो इनर एनवायरनमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू फील फ्रॉम विद इन, बिकॉज वॉट एवर इज देयर इनसाइड यू is mirrored outside. Whatever is happening outside of you is a mirror image of what is going on in your inside. So just take 1 minute from your busy schedule and devote it only for yourself to know what is going on inside of you. अगर आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो वो कारण जानने की कोशिश कीजिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो भी, आप खुश हैं तो भी। ये 1 मिनट जो है ये बहुत क्रूशियल है। जब आप ये देख लें कि आपका सब कुछ अच्छा है, तो आप आपके आजू बाजू रहने वाले लोग जो आपकी क्लोजेस्ट फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी लाइफ के लिए 1 मिनट डिवोट कीजिए और देखिए क्या उनकी लाइफ ठीक है। आर दे हैप्पी, आर दे सेटिस्फाइड, आर दे कंटेंट। और अगर नहीं है तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि इनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं और आप इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये 1 मिनट बहुत सारे सुसाइड्स स्टॉप कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। सुसाइडल आइडिएशन, जो सुसाइड की थॉट प्रोसेस होती है उसको सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। इसकी दुनिया बहुत अलग होती है जो हम इस अवेयरनेस में शायद समझ नहीं सकते। डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशन, and I'm talking about clinical depression, not general feeling of blue कि हाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग बहुत बार यूज करते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, नॉट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपके लाइफ में आए हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनसिक्योरिटीज अबाउट योर जॉब, फाइनेंशियल क्राइसिस, और अभी तो पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा ही लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमको सोच बदलना होगी, क्योंकि ये जो आइडिएशन है, जो सुसाइडल थॉट की प्रोसेस है कि मेरी लाइफ में ये चीजें ऐसी ऐसी नहीं हो रही हैं जो मुझे चाहिए, उसको हमको शिफ्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तभी हो सकता है जब हम हमारी अवेयरनेस फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाएं। जब हम ये सोचने लगते हैं, व्हेन वी थिंक ऑफ गिविंग अप, व्हेन वी थिंक कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है और मेरी लाइफ नहीं चलने वाली है,
तभी कोई सुसाइड करने का प्लान करता है। जब भी आपके मन में या आपको ऐसा लगे कि आपकी फैमिली में किसी के मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज टॉक टू देम, टॉक टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। इस दुनिया में कोई भी लॉक बिना उसके की के नहीं बनता। अगर हम एक लॉक को एक कंसर्न की तरह, एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम की तरह समझें, तो उसकी की जो है वो उसका सोल्यूशन है। एंड एवरी लॉक हैज अ की, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, बट द माइंड that has created this problem is not able to solve it. So you have to shift your awareness from that problem to problem solving. अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो सिर्फ वही दिखेगा, बट हमें वह नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आपके पास्ट बिलीव्स, आपकी जो भी पास्ट कंडीशनिंग है, वो सब चेंज करने से। आजकल एक नया ट्रेंड भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले अपनी फैमिली को मार रहे हैं और उसके बाद में खुद सुसाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है। सुसाइड करना स्पिरिचुअल रेम्स में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा अपराध समझा जाता है, सिन समझा जाता है। आप वो तो कर ही रहे हैं और उसके पहले ये भी कर रहे हैं कि अपनी फैमिली के लोगों को भी मार रहे हैं। आई एम सॉरी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस वर्ल्ड में जो सॉल्व नहीं हो सके। और मर के आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? डू यू थिंक आप इससे बाहर निकल जाओगे? आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो इस तरह की बात होगी कि आप अच्छे भले किसी डेस्टिनेशन को जाने के लिए आप एक ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलना चालू हो गई, थोड़ा रास्ता आपने तय कर लिया और बाद में ट्रैक पे कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो ट्रेन रुक गई, काफी देर रुकी रही और आपको ये लगा कि ये ट्रेन तो अब चलेगी नहीं, तो आप कूद गए नीचे और दौड़ने लगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से ये ट्रेन अभी आगे नहीं जाएगी। अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है तो कूद के और फिर भाग के ही जाना पड़ेगा। कुछ रास्ता आप चले, कुछ रास्ता दौड़े और फिर कुछ रास्ता भी चल लिया, बट आपकी एनर्जी समाप्त हो गई एंड यू गेव अप। दिस इज हाउ पीपल कमिट सुसाइड। अरे जब आप एक ट्रेन में चढ़ी गए हो तो वेट कीजिए, इधर ऑब्स्टेकल निकला और उधर ट्रेन चल पड़ी, बट आपने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। एक ऐसी फॉल्टी सोच जो आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, वो किस काम की? जब मेरा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आप इन बातों पे सोचिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो सच है, क्या उसमें कुछ तथ्य है? और आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारा तथ्य है। खाली अंदर ही अंदर घुटने से, अंदर ही अंदर बात करने से, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। यू हैव टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद समवन। ऐसा एक व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज है, जो आपके फैमिली में हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और मे बी अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि लेना ही चाहिए। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में जब भी ऐसा लगे कि बहुत डार्कनेस आ गई है और इसके आगे कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ का अच्छा समय चालू होने वाला है। आप सोचेंगे कि बड़ी स्टूपिड सी औरत लग रही है, बकबक कर रही है फालतू की, जब अंधेरा होता है तो अच्छी चीजें चालू हो जाती हैं, ये तो हमको पता नहीं था। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे पागल बोली, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी मन की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो ट्वाइलाइट आवर्स होते हैं, मॉर्निंग ट्वाइलाइट एंड इवनिंग ट्वाइलाइट, दीज आर द डार्केस्ट आवर्स ऑफ द डे। मॉर्निंग के ट्वाइलाइट के बाद में दिन होता है, भोर होती है, सुबह होती है, जब लाइट आती है, और इवनिंग में डार्कनेस हो जाती है। लेकिन वो रात समाप्त होती है, वो रात हमेशा नहीं चलती रहती, इट्स नॉट फॉर एवर। तो वेट कीजिए उस अपॉर्चुन मोमेंट का,
जब आपकी लाइफ में भी लाइट आएगी। डोंट गिव अप एट दैट पॉइंट। हमेशा याद रखिए, ट्वाइलाइट आवर आया है आपकी लाइफ में जब एवरीथिंग इज डार्क। जस्ट वेट, जस्ट कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, जस्ट कनेक्ट विथ दोज हु लव यू। इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में मत आइए जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते या बोलते हैं। उन लोगों के कांटेक्ट में रहिए जिनसे आपकी स्पिरिट्स लिफ्ट हों, जिससे आपको अच्छा लगे, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन हम भागते उनके पीछे हैं जो हमें डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। छोड़ दीजिए उनको। लेट देम लिव देयर ओन लाइफ एंड यू लिव योर ओन लाइफ, बिकॉज यू हैव टेकन इनकारनेशन फॉर योरसेल्फ। आपने दूसरों के लिए जन्म नहीं लिया है। कहने में ये बात शायद सिंपल लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि इतने सहजता से ये बोलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन टेक अ मिनट एंड सेव योर ओन लाइफ। व्हाई नॉट? थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द गुड डेज यू हैव स्पेंट। किसी की लाइफ में सिर्फ डार्कनेस नहीं होती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों भी चीजें होती रहती हैं। जो भी पॉजिटिव आपके लाइफ में हुआ है, बिल्कुल बचपन से लेकर के अभी तक, उन चीजों को याद कीजिए, उन मोमेंट्स को याद कीजिए। अभी जो पैंडेमिक का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी मुझे पता है जॉब इज नॉट गुड, आउटसाइड एनवायरमेंट इज नॉट गुड, सब कुछ बहुत डरावना सा है बाहर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलें, और ये सिचुएशन कब तक रहेगी दैट नोबडी नोज। बट दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, टू कनेक्ट विथ योर फैमिली, स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन योर सेल्फ, राइट? एक आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का क्यों नहीं चार्ट बना लेते? देखिए कितने सारे स्ट्रेंथ हैं आप में। गॉड ने हमको वेल इक्विप्ड बनाया है, हम में वो सब कुछ है जो हमको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी है। एक बहुत सुंदर बॉडी दी है, एक बहुत अच्छा माइंड दिया है, और एक बहुत अच्छी सोल दी है। इनका उपयोग कीजिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, वो सब कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आपके स्ट्रेंथ देखिए, हर किसी में, हम में सब में कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है। आप वो टैलेंट का उपयोग कीजिए। जो चैलेंज होता है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए। चैलेंज में रोने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाके वो सब ढूंढने की जरूरत है। जो ट्रेजर आपके अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकालिए। हो सकता है आपका टैलेंट आपके लिए कुछ पैसे भी ले आए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी बेटर हो जाए। जस्ट लुक विद इन, एक स्टेप अंदर ले लीजिए, बस दैट्स इट। बाहर भागने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस लाइज विद इन। आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। आपके जो इमोशंस हैं उनको देखिए, अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं अपने लिए। मैं या मेरे जैसे बाकी लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये आपसे अच्छा आपके लिए कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप ही तो अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। मैं जो भी बात कर रही हूँ एक जनरल फ्रेम में कर रही हूँ, बट जो स्पेसिफिक है आपके लिए जो अच्छा है वो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल ट्रेजर हमको दिया हुआ है, हमारी इंट्यूशन है, हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, उसको बाहर लाइए, क्योंकि पीस वहीं से आती है। प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उन लोगों से कनेक्ट होइए जो पॉजिटिव टॉक करते हैं, जो दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, जो दूसरों को उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं। उन लोगों के जब आप टच में आएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो आप में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। पैंडेमिक इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉरएवर, लेकिन इसमें मर के भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो टाइम है इसको पॉजिटिवली यूज कीजिए। अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन अभी डाउन है, क्योंकि बाहर सब कुछ बंद है, ऑफिसेज आर क्लोज्ड, बिजनेसेस आर क्लोज्ड, जितने पैसे हम कमा रहे थे उतने हम नहीं कमा रहे हैं। अगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से भी पैसे अगर नहीं कमा पाएंगे अभी, तो भी कोई बात नहीं, आप खर्चे अपने कम कर दीजिए।
मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, सच अ सिंपल थिंग। ये जो टाइम है, ये किसी को कुछ भी दिखाने का नहीं है। वैसे तो कोई भी टाइम नहीं होता किसी को दिखाने का, लेकिन ये टाइम स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक फेस्टिवल के टाइम पे आपने नए कपड़े नहीं लिए, नई ज्वेलरी, नया कुछ भी नहीं लिया, तो क्या कुछ हो जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? अगर एक बार आपने दिवाली में अपने ओल्ड क्लोथ्स में अगर अपने फोटोग्राफ्स डाल दिए, तो क्या आपको फेसबुक से बाहर कर दिया जाएगा? या आपके इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ आ जाएगा कि यू कैन नॉट पोस्ट ओल्ड पिक्स? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। किसको दिखाना है हमको? किसी को भी नहीं। ये जो रोग होता है कि लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि अरे सेम शर्ट, सेम साड़ी, सेम ड्रेस पहन के आगे, बोलने दीजिए। अगर उनको इतनी मेरी चिंता है तो मुझे ला के दे दें, राइट? अपने थॉट की प्रोसेस चेंज कीजिए। आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ये डिसाइड करना आपका काम है। दूसरों के लिए जीना छोड़ दीजिए, अपने लिए जीना सीखिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, आपके सारे कंसर्न्स कम होने लगेंगे, और ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं आएगा कि किसी को भी सुसाइड करना पड़े। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। तो मैं जरूर आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी और आपसे ये बात करना चाहूंगी कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसके लिए, तो मैं उसको भी बिल्कुल अपनाना चाहूंगी। तो 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं। एक तो अपने थॉट्स आप जर्नलाइज करना चालू कीजिए, जॉट डाउन वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू, address your concerns and try to resolve them. This is the only way to come out of any concern of your life. दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी कंसर्न ऐसा नहीं है सॉरी, जो सॉल्व ना किया जा सके। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो सहारा लीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। आपने देखा होगा कि सुसाइड करने वाले लोग किसी एक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटा से नहीं आते। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके बिल्कुल चॉल्स में, स्लम्स में रहने वाले लोग भी सुसाइड करते हैं। इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। टीनेजर्स भी आजकल कर रहे हैं, एडल्ट्स कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, फीमेल्स कर रहे हैं। लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहुत से बार मैं पढ़ती हूँ कि रिजल्ट आने वाला था, स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, लेकिन उसको ये लगा कि वो पास नहीं हो पाएगा, या अगर अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ तो पेरेंट्स से बहुत डांट या मार पड़ेगी। रिजल्ट की राह देखे बिना सुसाइड कर लिया। क्यों? रिजल्ट की राह तो देखते। और अगर फेल भी हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ पास होना या 95, 98, 99% लाना सब कुछ नहीं है। फेल वो होता है जो अटेम्प्ट करता है कुछ। अगर मैं आराम से सोती पड़ी रहूं तो मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अगर मैं गलती कर रही हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ ट्राई कर रही हूं, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूं। माइंडसेट बदलिए प्लीज। अभी जो भी सिचुएशन है बाहर, उससे हम सबको मिलके बाहर आना है। इसलिए हम सबको मिलके ये कदम उठाना पड़ेगा कि हम सब एक दूसरे के स्पिरिट्स लिफ्ट अप करें और एक दूसरे से प्यार से मिलके रहें। तभी हम ये जो पैंडेमिक है, इसको भी मैं एक पैंडेमिक बोलती हूँ। सुसाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, सॉरी, इनसे बाहर हमको लोगों को लाना पड़ेगा। जो कुछ टेल टेल साइंस होते हैं सुसाइड के, मैं वो भी बता देना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई व्यक्ति एकदम से चेंज हो रहा है, चुपचाप अपने ही रूम में बैठा रहता है, डिप्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, बहुत एंगर कर रहा है, बहुत मरने की बातें कर रहा है, या इस तरह के सीरियल्स देख रहा है, यूट्यूब के वीडियोस देख रहा है, दिस इज अ टेल साइन ऑफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड।
अगर आप कोई भी चेंज देखें बिहेवियर में, अलर्ट हो जाए। अगर आपके घर का या आपका फ्रेंड या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं इस तरह की बात करता है जहां डेथ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है उनके लिए, हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा हो, अलर्ट हो जाए, उनसे बात कीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए। और अगर आप हैं जिनको खुद इस तरह का आइडिएशन हो रहा है तो प्लीज अकेले ना रहें, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताएं, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो इस तरह के थॉट्स ज्यादा आते हैं। अगर ये आप सोच ही लें कि कमिट करना ही है तो वो डिसीजन 7 डेज के लिए टाल दीजिए कि चलो 7 दिन रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7th डे फिर सेम कीजिए, अनदर 7 डेज। प्लीज कीप पोस्टपोनिंग इट। शायद उसमें कुछ रास्ता मिल जाए, शायद उसमें कुछ मिल जाए आपको जिससे आपको ये ना करना पड़े। मत मरिए, ऐसे बिल्कुल मत मरिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल आपके लिए है यहाँ पे। आप यहाँ कुछ अचीव करने आए हैं, वो अचीव करने के बाद अपने आप मर जाएंगे। कब सोल निकल जाता है बॉडी से पता भी नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह बिल्कुल मत कीजिए। खुद को और अपनी फैमिली को ऐसे प्रश्नों में मत डालिए कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चा मर गया या जो भी आपके रिलेशनशिप है वो इंसान मर गया। प्लीज। सो मैं आपको अभी टेक अवेज देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ तो नहीं दी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट सुसाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड। टाइम रहते अगर आप एक्शन लेंगे तो सुसाइड डेफिनेटली प्रिवेंट हो सकता है, इसीलिए तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। टॉकिंग माइट हेल्प। बात कीजिए। एक कोई तो एडवर्टीजमेंट आती थी, बात करने से ही बात बनती है। बिल्कुल सही। टेम्पररी कंसर्न्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशन सुसाइड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपने ये प्रोग्राम भी तो अटेंड किया है जिसमें हमने ये सब बातें की हैं कि सुसाइड प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो आज के बाद अपना मन, अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों में लगाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं तो वो शेयर करें। आपके नियर जो भी हैं उनसे या प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन हमको ऐसे मरना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरे की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी है इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, बिकॉज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन सामने वाले को आपकी ग्रास ग्रीन नजर आती है, तो आर यू रेडी टू एक्सचेंज द ग्रास? नो। दूसरे के प्रॉब्लम्स कोई भी एक्सचेंज करना नहीं चाहता। अपने ही प्रॉब्लम्स में रहिए और उनका ही सॉल्यूशन ढूंढिए, अपना माइंडसेट चेंज करके, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करके। विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लिव, बिकॉज योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। थैंक यू, धन्यवाद। इन द मीन टाइम मैं सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर लेती हूँ। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस मैं वो आंसर करना चाहूंगी। And once again, I would like to say a huge thank you to all of you for joining me in my life and taking time from your very busy schedule. So please, aaj se, take a minute and save a life. It could be yours or maybe of your near and dear ones. Thank you once again. मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी वेबसाइट www.spiritualconnect.org आप विजिट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ध्यान रखिए, कनेक्ट इज विद अ के। आप मेरा फेसबुक पेज स्पिरिचुअल कनेक्ट लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब पे स्पिरिचुअल कनेक्ट के नाम से, आप वो लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको जो भी प्रोग्राम देखने का मन हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल वीडियोस बनाऊं या कोई स्पेशल टॉपिक पे बात करूं, तो आप मुझे सजेशंस भेज सकते हैं at info@spiritualconnect.org और spiritualconnect@gmail.com। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन स्पिरिचुअल कनेक्ट एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी कैन कनेक्ट इट।
Thank you so much. Let me just scroll through the comments. Thank you so much. Wonderful initiative and need of the day. In the times of corona when mental balance is so much needed, this is, thank you so much. Thank you Chandrakant ji, thank you Anubhuti, Deepti, so proud. Mani, thank you so much. Ragini, absolutely great session, thank you so much. Thank you so much. At the moment I am not seeing any questions, so I would like to call it a day. अगर आपके मन में कुछ है तो ज़रूर लिखिए, and अगर possible है आपके लिए तो please share this video with many others. You do not know, you may do a good karma by sharing it. It's possible that somebody is ideating suicide, and ये छोटा सा वीडियो मेरा शायद उनको हेल्प कर सके और आपके भी स्पिरिचुअल ब्राउनी पॉइंट्स ऐड हो सके. कर्मा इज सेम फॉर एवरीबडी और वो किसी को छोड़ता नहीं है, तो अच्छे काम कर लें हम थोड़े से. सो इफ यू फील लाइक शेयरिंग दिस लाइव सेशन विद समबडी, प्लीज डू दैट. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए. नो सुसाइड्स. थैंक यू, बाय बाय.